Okay, the rest of this I will be taking on Monday and Wednesday. I will be taking the classes. Okay, so now let's start discussing the standard sizes that are available of for a drawing sheet. Okay, so as you can see, you are already aware with the A4 size. I hope that I was discussing right now. I was telling you that the sheet here, this sheet that we normally use for Xerox, uh, it's an A4 size. Okay, so the largest size that is available in the market is A0, and the smallest size is A5. So, what is the trimmed and untrimmed length? I will tell you in a while. Okay, just look at the sizes. Okay, 841, and then 1189 is the double of 594. You see, the size is getting half. So let me explain you clearly with this. Okay, this is a this complete sheet. The outside border is A0. Okay, and then if we reduce the sheet in half, if we just divide the sheet into half, this is A1. And when we divide the A1 sheet into half, when we divide the A1 sheet into half, we will get the size of an A2 sheet. Similarly, we will get when we divide A2 sheet into half, we will get A3. We divide A3 sheet into half, we will get A4, and similarly A5 and A6. This is just for your information. You don't have to divide the sheets, but this is just for your information about the sizes of different sheets available in the market. Okay. Another important thing about the drawing paper is that when you work on the drawing paper, uh, there are two sides of the drawing paper. One is rough and another side is smooth. So you must have seen the people who have purchased the drawing book. You must have seen that one side is rough and another side is smooth. So you have to work on the smoother side. Okay, the smoother side is the one on which you have to work on. So this was the trimmed and untrimmed size that I was talking about. Actually, we have to make when we work on drawing sheet, we have to make the margins. Okay, so this inside margin, it is the trimmed size. Okay, and this size, the outside size is the Sir, untrimmed sir, size. Okay, speak again, sir. yeah, What is dreamed? trimmed trimmed means कटा हुआ. ठीक है, Yes, sir. इन हिंदी में इसको हम बताएंगे कटा हुआ साइज, कट साइज. ठीक है, ये क्या है, अनकट साइज. तो ट्रिम्ड साइज में जब हम इसको करेंगे तो ये आ गया आपका ट्रिम्ड साइज. ठीक है, ये हम जब बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पर, उसके बाद जो साइज आएगा वो ट्रिम्ड साइज कहलाएगा. बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दें. और देखो ये इसमें साइजेस भी लिख रखे हैं, कितना कितना है जो है यहाँ पर. जनरली हम, इट्स नॉट वेरी स्टैंडर्ड, but generally what we take is that for an A4 sheet, this is C, this is D. For an A4 sheet, we take a margin of 10 mm, 10 mm, and 10 mm. Okay, top, right, and bottom we take 10 mm size, and on the left we take 25 millimeter size. These dimensions are in millimeter. ठीक है. नहीं समझे मारूफ, सर. यस सर. आप ये बताइए कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर में क्या वो होता है रिलेशन. सर मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा होता है सर, बाय 100. बाई 100, नो, बाय 10. बाई 10 होता है. ठीक है, यस. बताइए क्या पूछ रहे थे आप.
सर मतलब इसमें 3 साइड होगा सर 10 mm और एक साइड होगा सिर्फ 20 mm 25 mm। ये मार्जिन की हम बात कर रहे हैं। आप इधर ड्राइंग शीट अगर आप यहाँ देख, आपको नजर आ रहा हो, यू कैन सी, आई एम नॉट श्योर, लग रहा है आपको शायद। अभी हम आपको जो है ये समझा देंगे। ये जब हम किसी भी शीट पर मार्जिन बनाते हैं, किसी भी शीट पर मार्जिन बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये जो लेफ्ट साइड है इसमें हम A4 शीट पे, अपनी ड्राइंग शीट पे आप 25 मिलीमीटर रखेंगे। टॉप से आप 10 मिलीमीटर का मार्जिन रखेंगे, यहाँ से 10 मिलीमीटर का मार्जिन रखेंगे, और ये भी मार्जिन 10 मिलीमीटर का होगा। यस सर, कैसे रखेंगे अभी समझा देंगे, डोंट वरी। Okay, so that was all for the introduction. Okay, so when laying out a drawing sheet, हमको क्या देखना है कि कितना किसी भी ड्राइंग शीट का साइज पहले देखा जाएगा। जैसे मैंने दिखाया आपको A0 का साइज है, तो उसके हिसाब से जो आप लिखेंगे उसमें जो आपका डायमेंशन बनेगा, जो आपका स्केल यूज होगा वो डिफरेंट होगा। और A4, A5, A6 जो साइज छोटा होता चला जाएगा तो डायमेंशन आपके छोटे ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपने सबसे छोटा साइज ले लिया और आपने जो है बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बना लिया। इरशान इज सेइंग इट्स माय फर्स्ट क्लास। ओके इरशान, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द मेन क्लास फॉर द ड्राइंग, whatever is left, I will teach you later. Okay, I will keep a class, an extra class in which the other students who have not joined the previous classes, they can join. So don't worry, ये पीछे का आपको जो है इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी जो हम आगे पढ़ाएंगे। तो till now what we taught was only just introduction. Okay, the unit 1 will be started now today. Okay, so the first thing is that we need to consider the size and scale of the object, the sheet size, the units that we will be taking. Okay, ये नहीं है कि आप जो है, क्योंकि जब आप स्केल रखेंगे तो आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है कि कितने यूनिट्स आपको रखने हैं, क्या मेजरमेंट सिस्टम रखना है, फीट में रखना है, इंचेस में रखना है, क्या स्टैंडर्ड है। ये आपको हर ड्राइंग के हिसाब से, हर ड्राइंग शीट के हिसाब से ये डिफरेंट होता है। ठीक है, स्पेस नेसेसरी फॉर द स्टैंडर्ड नोट्स एंड टाइटल ब्लॉक। ठीक है, जब हम राइट करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, यानी जब हम ड्राइंग की लेटरिंग जब हम लिखेंगे तो कितना स्पेस होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ दिस वाज फॉर द इंट्रोडक्शन। नाउ आई start with the first presentation of the unit 1. Okay, so this is unit 1, printing. Okay, so in the printing we will talk about lettering. Okay, the lettering is the same that you have learned in your first and second classes, the ABCD. Okay, so क्योंकि हम किसी भी ड्राइंग शीट पर जब हम टाइटल्स लिखते हैं, जब हम डायमेंशंस लिखते हैं, तो क्या होगा कि हमको लेटरिंग की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो लेटरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ड्राइंग, ऑफ एनी ड्राइंग। फॉर एनी ड्राइंग वी नीड लेटरिंग। ओके, तो अगर हमारी लेटरिंग अच्छी होगी, अगर हमने अच्छे से लिखा होगा, तो हमारी ड्राइंग नीट एंड क्लीन नजर आएगी। हमने अपने ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बनाया, हमने अपनी ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाई, बहुत साफ सुथरी बनाई, अच्छे से नहीं लिखा, देन हमारा जो ड्राइंग शीट है वो बहुत खराब लगेगी, बहुत गंदी लगेगी। ठीक है, तो वी हैव टू कीप इट प्लेन एंड सिंपल। ठीक है,
क्योंकि lettering it will take a lot of time. Okay, I will tell you today. I will tell you the different types of lettering that are used. But today, what I will teach you uh, by drawing is the freehand lettering. Okay, so let's see what are the different types of lettering. So this is the classification of lettering. Lettering. Okay, the first one is Gothic lettering. Now, what's Gothic lettering? The lettering in which all the alphabets are of uniform width. They are known as Gothic lettering. ठीक है? Gothic lettering क्या होती है? अभी हम आगे दिखाते हैं. Then there is Roman lettering. The Roman lettering, you must have seen the Roman letters and in different styles in Microsoft Word. तो इसमें क्या होता है, कुछ कहीं से थिक है, कहीं से थिन है. आई विल शो यू दैट एज वेल. एंड देन देयर इज फ्री हैंड लेटरिंग, जिसको हम सिर्फ हाथ से लिखते हैं. तो दैट्स कॉल्ड फ्री हैंड लेटरिंग. नाउ now let's talk about in the part of Gothic and freehand lettering. We can classify this as a single stroke lettering. Okay, तो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ओके, हर चीज का एक स्टैंडर्ड, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम स्टैंडर्ड्स के बारे में भी सीखेंगे. इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड्स सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग फॉर यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग? Single stroke lettering means that the thickness of each letter should be obtained in single stroke. Okay, ऐसा नहीं है कि हम एक ही बार में हमने कंटिन्यूअस बनाया. जरूरी नहीं है, हर चीज हम एक बार में नहीं बना सकते, लेकिन लगे ऐसा कि हमने एक बार में बनाया हो, कहीं से मोटी कहीं से पतली ना हो. आई बात समझ में? ठीक है. अब सिंगल स्ट्रोक लेटर कितने टाइप के होते हैं? वर्टिकल और इंक्लाइंड होंगे. ठीक है, इंक्लाइन लेटर हम बनाएंगे 75 डिग्री के एंगल पे. ठीक है, आई हैव रिटन टू मच. ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन ये सिर्फ आप, ये है कि एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके वाइवा के लिए काम में आ जाएगा. ठीक है, मैंने इसीलिए बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी का पार्ट दे दिया है. ऑल्दो when you will write you will not need everything. Okay, ठीक है. अब ये दो तरीके की लेटरिंग होती है, लेटरिंग ए और लेटरिंग बी. वी विल ओनली लर्न लेटरिंग टाइप ए. लेटरिंग टाइप ए में क्या करते हैं कि जो लेटर है उसको 14 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ये सब समझा दूंगा मैं अभी, जब वी विल कम टू when we will come to the drawing part. I will teach you everything. ठीक है, so इसको छोड़ के भी हम आगे बढ़ते हैं पहले. ठीक है, इसको भी आप छोड़ दीजिए अभी. ये देखिए, तो this is the uppercase vertical and italics lettering. So this one is italics that you are seeing below, and the top one is the uppercase vertical lettering, A B C D. Simple, आसान है. This one is lowercase vertical and italics. जैसा हमने सीखा है पहले भी. We are moving from the left to the right. Okay. Okay. So please explain it again, sir. I didn't get it. okay. I will explain it. Let me share another drawing with you. Okay, let's talk about this only right now.
क्या चीज नहीं समझ में आई, पहले ये बताओ। ये चीज नहीं समझ में आई। Sir, the way you told us about vertical writing and about Roman. Okay, okay. That for that I will show you. I'll show you in the book. Wait. Is this visible to you? ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, yes, sir. ये दिस इज कॉल्ड रोमन लेटरिंग। Okay, sir. ठीक है, ये कहीं लिखा हुआ देखा है पहले? Yes, sir. In computer. Yeah, normally it's used in the architectural drawings. Okay. और this is single stroke. This one is single stroke Gothic lettering. ठीक है? Why do we need italics? Why There do are we many. need italics? There are many places. There are many places where, especially in the mechanical engineering drawing, where we have to write in italics as well. Okay. Okay. Excuse me, sir. हाँ. Sir, how बताइए. do we come to know that it is Gothic single stroke lettering? How do we come to know? Okay. Yeah. This is Gothic double stroke lettering. Can you see the difference? Yeah, yeah. Hmm? Yes, sir. Yes, sir. अगर थिकनेस ज्यादा है, then it's Gothic double stroke. थिकनेस कम है, then it's Gothic single stroke. ठीक है? सिमिलरली इसी चीज को अगर हम हाथ से बनाएंगे, जस्ट फ्री हैंड, वी डोंट नीड दी स्क्वायर्स। अगर हम इसमें ये स्क्वायर्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधे सीधे हाथ से बनाते हैं इसको, तो ये क्या कहलाएगी? फ्री हैंड लेटरिंग। Okay, sir. The left side and the right side, sir. So mixed fraction, what does mean, sir? मिक्स फ्रैक्शन, नो नो, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि अगर हम इसमें जो है, अगर हम इसमें 2 होल 3/4 अगर हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? ये इस ब्लॉक्स में अगर हम दिखाते हैं तो 2 इस ब्लॉक में नहीं आएगा, तो ये कैसे आएगा ये दिखाया है इन्होंने इसमें। 2 इज इन दिस ब्लॉक एंड देन इसके सेंटर पे हम ये लाइन लेंगे, उसके ऊपर 3 एंड देन 4। जब हम ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, समझे? Yes, sir. Okay, sir. अभी इसको और पेपर पे समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये चीज तो क्लियर है ना? अब इसकी जो गाइडलाइंस होती हैं जो लेटरिंग की, जो कि हम आपको सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग जो है गॉथिक लेटरिंग नहीं करवाएंगे, although it's in the course, I will just teach you, but for the sake of your time, and you have other drawing as well, so I will teach you. If you want, I can give you. अगर आप चाहते हैं कि जो है ये आपको इसका भी ड्राइंग का असाइनमेंट दिया जाए, then I can also give you for practice, and I will teach you. Okay, I will teach you about this, how to draw it, but today what we will do is free hand lettering. Okay, हम यही चीज फ्री हैंड लेटरिंग में कैसे बनाते हैं ये चीज सीखेंगे। तो लेट मी जॉइन विद another.
ये नजर आ रहा है आप लोग? ओके, माय ट्राइपॉड जस्ट ब्रोक। मेरा ट्राइपॉड जो है वो टूट गया है, वरना तो There was any technical. दिस इज विजिबल और नॉट? No, sir. No, sir. No, You have not shared. No, sir. No, sir, not properly visible. ओके ओके, नाउ इज इट विजिबल लिटिल बिट? No, sir. no, sir. We are not able to see anything, sir. ठीक है, वेट वेट जस्ट अ मिनट। मैंने ट्राइपॉड सेटअप किया था उसको, लेकिन वो ट्राइपॉड जो है वो ब्रेक कर गया अभी। सर अभी क्लास B1 C2 को चल रही है सर। सर सर अभी क्लास B1 C2 को चल रही है। हाँ भाई। सर हम B1 C1 में तो क्लास छोड़ सकते हैं सर। हाँ भाई छोड़ दो। ये B1 C2 की है। तो B1 C1 की क्लास कब होगी सर? I think so. According to classmate, my dear. अपने क्लास में टाइम सेंड किया सर ने। B1 कल C1 हुई का तो मीटिंग थी ऑलरेडी भाई। सेंड किया हुआ है, तुम देख लो। ड्राइंग का क्लास हमारा कर रहे इस यूनिट में आपकी दो ड्राइंग शीट सर बनेंगी। muted it, sir. एक तो यही ड्राइंग शीट बनेगी सिंगल स्ट्रोक की लेटरिंग की, और जो दूसरी ड्राइंग शीट बनेगी वो गॉथिक लेटरिंग की बनेगी। ठीक है, जस्ट क्लास से पहले ही ट्राइपॉड टूटा।
अब ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। Yes, ये sir. दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ठीक sir. है, ठीक है। तो ये ड्राइंग शीट है आपकी, ठीक है। अब इसमें ये A4 की साइज की शीट मैंने ली है। अब यहाँ पर आप ये जो मार्जिन देख रहे हैं 25 मिलीमीटर, ये जो 25 मिलीमीटर का मार्जिन देख रहे हैं, यही मैं आपको बता रहा था। ये जो साइज है 10 मिलीमीटर, ऊपर से 10 मिलीमीटर और नीचे से भी यही 10 मिलीमीटर होगा साइज। तो Yes, sir. ये जो साइज है ये कट साइज है, दिस इज कॉल्ड ट्रिम्ड साइज, ठीक है। और ये जो साइज है बाहर का, जो मार्जिन से बाहर इंक्लूड करते हुए पूरी शीट का साइज है, वो अनट्रिम्ड साइज है, ठीक है। क्लियर है? हाँ। Untrimmed अब कौन सा है? Sir, once again, sir, untrimmed size. अनट्रिम मतलब, ट्रिम का मतलब होता है कट किया हुआ, कटा हुआ. कटा हुआ, ठीक है। अनट्रिम्ड मतलब नहीं कटा हुआ। तो अनट्रिम्ड साइज क्या हुआ? ये बाहर वाला साइज पूरा। ट्रिम्ड साइज क्या हुआ? ये कटा हुआ साइज, Yes, sir. कोई भी ठीक है। ड्राइंग को अनट्रिम करके ही बनाया जाता है। ड्राइंग शीट, किसी भी ड्राइंग शीट पे पहले आपके दो साइजेस ही होंगे। आप पहले जो है, क्योंकि कोई ड्राइंग शीट टेढ़ी भी हो सकती है, कहीं से कुछ उसमें एरर भी हो सकता है, आप पहले ये एक बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स के अंदर का जो साइज है वो ट्रिम साइज ही कहलाएगा, ठीक है। हर ड्राइंग शीट के साथ हम पहले ये काम करते हैं, ठीक है। ओके ओके। Excuse me, sir. जी, सर हम लोग राइट हैंड साइड 25 mm लिए हैं और ऊपर नीचे और मतलब कि और राइट हैंड साइड में 10 mm लिए हैं। तो 25 mm जहाँ लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड, वहाँ 10 mm क्यों नहीं लिए हैं? वहाँ 10 Trim mm margin. इसलिए नहीं लिया है, वहाँ 10 mm इसलिए नहीं लिया है, आपके पास ड्राइंग शीट है। जब अब मोटी ड्राइंग शीट अगर होती है, जब आप उसको फोल्ड करेंगे तो वहां पर 25 mm इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उतना एरिया तो उसमें अंदर चला जाता है ना, तो गैप ज्यादा मिलना चाहिए। या फिर आप अगर A4 की शीट्स हैं, आप उसको क्लिप करेंगे अगर, तो आपको ड्राइंग देखने में आसानी हो। स्टेपल अगर आप करते हैं या क्लिप करते हैं तो आपको ड्राइंग देखने में आसानी हो, इसलिए, ठीक है। ओके सर. Okay, sir. अब आपको करना क्या है? हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लेटरिंग दिखा दी थी। एक मिनट, इसको भी दिखा देते हैं। इसको भी हम आपसे शेयर कर देंगे, अभी सब क्लास के बाद ये सारी चीजें आपसे शेयर कर देंगे। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस सर। तो ये स्पेसिमेन ऑफ वर्टिकल लेटर्स हैं, ठीक है। ये स्मॉल लेटर्स हैं। ये वर्टिकल अपर केस वर्टिकल है, ये लोअर केस वर्टिकल है, ठीक है। सिंगल है डबल है सर? ये स्पेसिमेन है ये, इसको आप सिंगल डबल मत समझिए। सिंगल डबल में आपको नीचे दिखाते हैं। ये डबल स्ट्रोक है आपका, ठीक है। डबल स्ट्रोक ये है इंक्लाइंड लेटरिंग, ठीक है। डबल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटरिंग में क्या होता है, ये जो वर्टिकल से ये 75 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन किया जाता है, ठीक है। फ्री हैंड ड्राइंग में भी 75 डिग्री के एंगल पे incline- आप हाँ, इंक्लाइन जब भी इंक्लाइन करेंगे तो आप 75, अब देखो ये वर्टिकल गॉथिक लेटरिंग आ गई, ये डिफरेंट वो बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये तो वर्टिकल है, ये 90 डिग्री पे है, लेकिन ये जो है ये इंक्लिनेशन है इस पे, Yes. कितना? 75 डिग्री का, ठीक है। क्लियर है? Yes. ये हर चीज इंक्लाइंड है 75 डिग्री पे। यहाँ देखिए 75 डिग्री पे इंक्लाइंड है ये। Yes. सिंगल स्ट्रोक, इटैलिक,
गॉथिक लेटरिंग। ठीक है, रेशियो क्या है वो उसको आपको हम बाद में बताएंगे। Sir, inclination, what it shows, sir? What does it mean? That इंक्लिनेशन inclination क्या इंक्लिनेशन कहना मतलब चाहते हैं वहाँ पर? नहीं सर, वो तो समझ गए कि वर्टिकल से किसी भी एंगल पर अगर वो होगा तो वो इंक्लाइंड कहलाएगा। ठीक है, नहीं, वो इंक्लाइंड क्यों करते हैं सर मेरे को? मैंने बताया ना, बहुत सारी जगहों पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो वो इंक्लाइंड क्यों करते हैं आप? तो बहुत सारी जगहों पर यू हैव टू राइट इंक्लाइंड लेटरिंग। ठीक है, यस सर। बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इंक्लाइंड में लिखनी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कैपिटल में लिखनी होती हैं, वो स्ट्रेट में लिखनी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको कैपिटल में लिखनी होंगी, बहुत सारी चीजें आपको स्मॉल में लिखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशंस हैं, mm लिखना होगा तो आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे mm। ठीक है, आप स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन आपको Yes, किसी sir. की हेडिंग लिखनी है तो किस में लिखेंगे आप? कैपिटल में। कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, इसलिए तो ये है, इसको हम आपको भी भेज देंगे। अच्छा, नाउ जब हम स्मॉल लेटरिंग की बात करते हैं तो हम स्मॉल लेटरिंग में ठीक है, वो अब ये तो हो गई इसकी बात। यहाँ पर वर्टिकल लेटरिंग जो हम फ्री हैंड करेंगे तो ये आपको मैंने एक ये सैंपल भेजूंगा। ठीक है, टॉप से 10 mm का गैप लेंगे। 10 mm का गैप लेने के बाद 14 mm हाइट में आप लिखेंगे सिंगल स्ट्रोक अल्फा न्यूमेरिक। मैं आपको भेज दूंगा, आई विल सेंड यू एवरीथिंग व्हाट टू राइट। तो इसको आप थोड़ा सा लेफ्ट से लिखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा सिंगल स्ट्रोक अल्फा न्यूमेरिक। देन आफ्टर दैट व्हाट यू विल राइट इज इंजीनियरिंग ड्राइंग 1। यहां पर आप लिखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग 1। ठीक है, 14 mm 5 mm का गैप। then you will write engineering drawing 1, then you will keep a gap of 26 millimeter, and then you will you draw another line of 14 millimeter। ठीक है, एक और लाइन बनाएंगे आप 14 मिलीमीटर की, और यहां पर आप लिखेंगे कैपिटल वर्टिकल 14 मिलीमीटर हाइट में। ठीक है, फिर उसके बाद आप जी ये फ्री हैंड लेटरिंग है सर? ये फ्री हैंड लेटरिंग है। आपने हाइट इसमें डिफाइन कर दी 14 मिलीमीटर की। यहां से आप जो है लाइन बनाना शुरू करेंगे। आपने ये लाइन बनाई, देन स्ट्रेट लाइन इसके नीचे आपने 10 मिलीमीटर की बनाई, फिर आप 14 मिलीमीटर की बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, कैपिटल लेटरिंग इन 14 मिलीमीटर हाइट। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब ये आप 5 मिलीमीटर का गैप लेंगे, फिर आप 5 मिलीमीटर के गैप में यहां लिखेंगे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग 1। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसको क्या लिखना है। ठीक है, देन यू विल राइट, देन यू विल कीप गैप ऑफ 26 मिलीमीटर। आप 26 मिलीमीटर का गैप लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद ये आप इसको देख के बना लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। आप जब इसको मैं भेजूंगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना। फिर यहाँ पे आप ABCD से लेके Z तक, लास्ट तक पूरा आप A to Z यहाँ पर लिखेंगे। फिर 5 मिलीमीटर का गैप लेंगे, फिर आप इटैलिक्स में यानी 75 मिलीमीटर के करीब इंक्लाइंड करके आप A to Z यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर 5 मिलीमीटर का गैप, फिर यहाँ पर 14 मिलीमीटर की हाइट में वर्टिकल कैपिटल में आप अपना फैकल्टी नंबर और 0 से लेकर 9 तक अपनी गिनती लिखेंगे। सर एक ही लाइन में ABCD से Z तक लिखना है? ABCD से Z तक एक ही लाइन में लिखना है। ये सब आ जाएगा Z तक। आप जब यहाँ गैप कम रखेंगे ना तो सब Z तक पूरा आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप अपना फैकल्टी नंबर लिखेंगे। ठीक है, अब जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, सर पेंसिल कौन सी यूज करेंगे लेटर लिखने के लिए?
पेंसिल जो आप यूज करेंगे वो आप HB यूज कर लीजिए इसके लिए, ठीक है, डार्क उसके लिए। और जो आप लाइन बनाएंगे उसके लिए आप 2H पेंसिल यूज कर लीजिए। इन लाइंस के लिए आप 2H पेंसिल यूज करिए, ठीक है। देखिए कुछ जगह तो लाइन इतनी लाइट है कि आसानी से नजर भी नहीं आ रही। अब ये जब आप स्मॉल लेटरिंग में लिखेंगे, स्मॉल वर्टिकल लेटर्स जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ देखिए A B से लेके G तक। A जो है क्योंकि स्मॉल है तो इसी गैप में आ गया। यहाँ पर हमने जो गैप आपको दिया है, यहाँ पे जो हमने आपको गैप दिया है वो है 8 mm का गैप ये है, 4 mm फॉर द टॉप एंड 4 mm फॉर द बॉटम। सो जितना भी जो टोटल बनेगा नॉर्मली इट विल बी इन 12 mm। फॉर एग्जाम्पल B वी विल से दैट इन स्मॉल वर्टिकल ऑफ 12 मिलीमीटर हाइट। तो B जो है वो 12 मिलीमीटर की हाइट का होगा, G जो है वो 12 मिलीमीटर की हाइट का होगा, लेकिन 8 मिलीमीटर तो यहाँ आ गया और रेस्ट 4 मिलीमीटर इसका नीचे है। ऐसे ही 8 मिलीमीटर B का यहाँ पर आ गया, रेस्ट 4 मिलीमीटर इसका ऊपर है। ये कहलाता है, ऊपर वाला स्पेस कहलाता है असेंडर स्पेस और नीचे वाला स्पेस कहलाता है डिसेंडर स्पेस, ठीक है। तो G जिसमें नीचे आ रहा है वो डिसेंडर स्पेस में आएगा, जिसमें यहाँ ऊपर आ रहा है वो जैसे K ऊपर आ रहा है तो ये इतना हिस्सा इसका असेंडर स्पेस में आएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? असेंडर स्पेस कितना मिलीमीटर का? 8 मिलीमीटर का सर। असेंडर स्पेस ये दोनों असेंडर और डिसेंडर दोनों 4 मिलीमीटर के हैं। ये मिड स्पेस जो है आपका, ये जो है मेन एरिया, ये आपका 8 मिलीमीटर का है। लेकिन जो आपकी लेटरिंग कहलाएगी वो 12 मिलीमीटर की कहलाएगी। अगर ये 4 मिलीमीटर है और ये 8 मिलीमीटर है तो 12 मिलीमीटर कहलाएगी, ठीक है। ऐसा किसी में नहीं होगा कि अपर असेंडर भी रहे और डिसेंडर भी रहे ना सर? दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। जब आपने G लिखा है तो देखिए डिसेंडर आया ना। नहीं मतलब एक में ही दोनों नहीं आ सकते हैं, असेंडर और एक में दोनों कैसे आएंगे? एक में दोनों कैसे आएंगे? हाँ वही तो। ठीक है ना। लेकिन जब आपको क्योंकि पूरा सेंटेंस लिखना होता है तो आपको असेंडर और डिसेंडर दोनों की लाइंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ओके सर। लाइन तो दोनों की आएंगी इसमें। We can write, sir, we can write P as a ascender and descender. दोबारा पूछिए Sir, we can write P as a ascender and descender, sir. Sometimes. नहीं, B को कैसे? नहीं, जो बेस आएगा आपका, जो Sir, बेस P, आएगा P, वो तो P. P आपको इस तरीके से लिखना है, मिड स्पेस में एंड देन डिसेंडर। दिस इज द स्टैंडर्ड, यू डोंट हैव टू टेक इट अप इन द असेंडर स्पेस, ठीक है। जो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग लेटरिंग में आपका यूज होगा वो ऊपर नहीं लेके जाएंगे आप इसको। Either it will be inside the main space or it will be ascender plus main space or main space plus descender space, ठीक है। सर ये रेड कलर का क्या है? ये तरीका बताया है कि आपको ड्रॉ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू गो, आपको यहां से लेके ऐसे बनाना है, देन यहां से इसके बाद आपको ये वाला हिस्सा बनाना है एंड देन यू हैव टू गो लाइक दिस। सर जो आपने नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 सर, इसका मतलब क्या है सर? 1 2 3 का जो नंबरिंग का मतलब है, इन्होंने ये बताया है कि इसको लिखना कैसे है ड्राइंग में। तो वेयर वी स्टार्ट, हाँ, किस तरीके से लिखा, ड्राइंग में हर चीज को बताने का तरीका हो जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर F है तो इन्होंने क्या कहा, आप मिड स्पेस से पहले नीचे जाइए, मिड स्पेस के टॉप से बिल्कुल नीचे जाइए यहाँ तक। फिर कर्सर दिख रहा है ना मेरा आप लोगों को, ये कर्सर नजर आ रहा है ना, ठीक है। अब उसके बाद आप ऐसे जाइए, टॉप वाला बनाइए और फिर उसके बाद आप ये क्रॉस बनाइए। तो 3 स्टेप्स में आपका F कंप्लीट होगा। ऐसे ही H, पहले आप ये वर्टिकल लाइन बनाएंगे, फिर उसके बाद आप ये छोटी वाली वर्टिकल लाइन बनाएंगे, उसके बाद आप इसको कर्व लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक। अच्छा, इसके सर ये असाइनमेंट सर बना के जमा करना है सर?
ये असाइनमेंट आपको बनाकर नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट वीक आपकी जो क्लास होगी उससे पहले पहले आपको जमा करना है। डेट मिलेगी ना सर जमा करने की? डेट हम आपको भी डाल देंगे। नेक्स्ट वीक जो आपकी पहली क्लास होगी आपकी होगी वेडनेसडे में क्लास, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको ये जमा कर देना है। ओके सर। ठीक सर है, ऑन योर गूगल क्लास 8 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर ये कैसे ड्रॉ करेंगे? ये कैसे अच्छा सवाल आपने किया। ये इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए जो मैंने ड्रॉ किया था मेरे पास ये, आपको कैमरा ऑन है, ये नजर आ रहा है? यस सर। ये जो है मिनी ड्राफ्टर का पार्ट है, ठीक है, ये मिनी ड्राफ्टर का पार्ट है। तो इससे वर्टिकल लाइंस बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाती हैं। इसी तरीके से मैंने इसको यहां से 10 mm का लिया डिस्टेंस, ऊपर से 10 mm का डिस्टेंस लिया, इधर से 10 mm का डिस्टेंस लिया, ठीक है। यहाँ पॉइंट्स बहुत लाइटली पॉइंट्स मार्क करें और इस लाइन को बना दिया। ऐसे ही 14 mm का लिया और इसकी लाइन को ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आप लोग इस काम के लिए सेट स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं। ये 90 डिग्री वाला सेट स्क्वायर आप यूज करेंगे तो यहां से आप जिस तरीके से मैंने इसको यूज किया है एग्जैक्टली इसी तरीके से इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहां से 10 mm का लेके आप यहाँ पर एक बहुत हल्का सा डॉट बनाइए तो नजर ना आए। ऐसे ही आप 10 mm लेके यहाँ हल्का सा डॉट बनाइए, नजर ना आए। तो 2-3 डॉट्स, अब जब 3 डॉट्स से जो है एक लाइन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आप 3 डॉट्स गैप पे बनाएंगे, उसके बाद आप एक लाइन लेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। समझ गए? यस सर। अब करने पर यस सर। ठीक है, जब आप करेंगे तो आपके वो समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। अब जो है ये चीज हो गई। अच्छा, आपको एक चीज और हमें दिखानी थी, ये तो आप बनाएंगे इसको, ये हो गया। अब उसके बाद स्मॉल वर्टिकल आपने बना लिया, फिर आप 10 मिलीमीटर का गैप लेंगे, फिर स्मॉल इटैलिक्स में बनाएंगे, फिर आप 10 मिलीमीटर का गैप लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में आप अपना फुल नेम लिखेंगे स्मॉल वर्टिकल में और किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने फुल नेम और सिटी लिख दिया और यहां पर आपने अपना फैकल्टी नंबर लिख दिया। इसी से आपकी नेम और शीट सिटी एक ही लाइन पे सर? एक लाइन में आ जाएगा। अगर आपका बहुत बड़ा नेम है कि आपके 4 नाम आ रहे हैं उसमें, तो फिर आप एक नाम कम कर दीजिए, ओके ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम है मोहम्मद अमान बेग, ठीक है, तो मोहम्मद अमान बेग आ गया, सिटी यहां पर आ जाएगी आपकी आराम से, ठीक है। क्लियर है? यस सर। नाम कैपिटल में लिखना है या फिर लोअर केस में? नाम आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। इसी का एक सैंपल सिंगल स्ट्रोक का हम आपको यहाँ दिखाते हैं, देखिए सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग का एक और सैंपल है ये। आप यहाँ पर जैसे वही चीज लिखी गई है, सिंगल स्ट्रोक अल्फा न्यूमेरिक, 10 mm का गैप, 10 mm का गैप, 14 mm का गैप। एक्चुअली ये शीट जो है ये थोड़ी बड़ी शीट है, तो इसमें जो है आपने ये गैप लिख दिए, फिर 26 mm का गैप लिया आपने। दिस इज फ्री हैंड लेटरिंग। 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 तो ब्लॉक लेटरिंग के लिए आपको इस तरीके से जैसे हमने बताया था ये स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे। ये जो स्क्वायर्स आपको बनाने पड़ रहे थे, ये किस तरीके से स्क्वायर्स बनेंगे, आई विल शो यू किस तरीके से स्क्वायर्स बनेंगे और कितना वो होगा वो बताया जाएगा अभी आपको। फ्री हैंड लेटरिंग में आपको स्क्वायर्स नहीं बनाने, आपको कुछ नहीं बनाना, सिर्फ आपको हाथ से फ्री हैंड लेटरिंग करनी है। ओके सर। ठीक है,
सर ये तो भेज देना सर, एक आइडिया लग जाएगा। ये भी दे देंगे आपको, इससे आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है। तो यस सर। ठीक है, ये भी शीट भी है, तो चलो ठीक है, इसका फोटो दे देंगे हम आपको, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी क्लियर। अच्छा, अब जो हम आपको दिखाना था मैं आपको, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं नॉर्मली ड्राइंग में। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ड्राइंग में यूज होते हैं वो ये देखिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैकेनिकल टूल्स का भी यूज होता है लेटरिंग के लिए। उसमें ये डिफरेंट स्केल्स हैं, ये देखिए, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, उस शीट पर रखिए। दिस इज विजिबल? Yes, sir. We are able to see. Yes, sir. अब ये क्या है? ये तो विजिबल होगा सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये मैकेनिकल स्केल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। ये भी एक तरीका है लेटरिंग के लिए, ठीक है। ये भी एक लेटरिंग का तरीका होता है कि आप इसके थ्रू अपनी लेटरिंग कर सकें। पहला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब आपको ये डिफरेंट कॉम्पास का सेट है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्सर यूज होता है, लेकिन मोस्टली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और सर ये काम A4 साइज पर हो सकता है? बिल्कुल A4 साइज पे काम हो जाएगा आपका। ये डिफरेंट जो वो हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रेंच कर्व्स, ठीक है। ये डिफरेंट साइजेस के फ्रेंच कर्व्स हैं। ये आप लोगों को दिख रहे हैं? सर इनसे क्या होता है सर? What are the usage of इनसे जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब आपको कोई कर्व बनाना होता है, कहीं पे कोई कर्व देना है, तब आप इन कर्व्स का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पैराबोला बनाना है, आपको एलिप्स बनाना है, तो उसमें क्या है, कर्व्स आपको बनाने पड़ेंगे। या कहीं और किसी ड्राइंग में कर्व है आपके लिए, आपके पास। इवन फॉर द केस ऑफ लेटरिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बी के लिए कर्व देना है, तो जितना कर्व देना है वो यहां से हम देख के उस हिसाब से कर्व, थोड़ा थोड़ा कर्व दे देते हैं। इसमें कंप्लीट कभी यूज नहीं होता, थोड़ा सा ही यूज होगा। जैसे इतना कर्व देना है तो आप इतना ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दो लाइंस को दो, अच्छा मैं बना के दिखाता हूँ आपको। Sir, we also have to use different pencils for drawing, sir. आई एम नॉट श्योर इफ इदरीस सर आपको जो है इसका यूज कराएंगे कि नहीं कराएंगे। इदरीस सर से जो हमारी बात हुई थी, इदरीस सर ने इसके लिए नहीं कहा था, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यूज नहीं होगा आपका। आप लोगों से हो सकता है अगर एलिप्स और पैराबोला बनवाया जाए तो कोई इसका यूज कर ले, वेल एंड गुड। कोई इसका यूज किसी के पास नहीं अवेलेबल है, वो हैंड से अच्छे से ड्रॉ कर लेगा, वो इनफ होगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, नजर आ रहे हैं? ये No, sir. करना। ये कर्व नजर आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। ऐसे ही कहीं पे भी आपको कर्व बनाना होगा तो आप फ्रेंच कर्व से बनाएंगे,
या कोई और कर्व आपको ज्वाइन करना होता है, या आपको छोटे इस टाइप के एलिप्स बनाने होते हैं, तो एक ही इंस्ट्रूमेंट आता है, यूज होता है जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ऐसे ही सर्किल बनाने के लिए डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्किल भी दिए हुए हैं। सर्किल आप अपने जो है प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं सर्किल, लेकिन दिस इज फॉर योर ईज। अगर आपको मालूम है कि इसमें जो है डिफरेंट सर्किल्स का डायमीटर दिया हुआ होता है, जैसे ये 6 mm का है तो इसका डायमीटर दे रखा है 6 mm, तो आप 6 mm का पहले आप कंपास मिलेंगे, उससे अच्छा ये कि यू हैव दिस, आपने इसको ड्रॉ कर लिया। तो ये सिर्फ इंजीनियर की ड्राफ्टिंग इंजीनियर के ईज के लिए ये आपको सिखाए जो है दिए जाते हैं, ठीक है। बस आपको तो जो है अभी फ्री हैंड लेटरिंग करनी है, आप फ्री हैंड लेटरिंग इससे करिए। आगे आपको अगर जरूरत पड़ती है तो फिर आप आगे जो है उसको अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, नहीं अवेलेबल है आप उसको ड्रॉ कर लीजिए हैंड से, वो इधर ही सर आपको बता देंगे, ठीक है। क्लियर है सर? फ्री हैंड लेटरिंग में सर मुझे हम लोग को जो बॉर्डर देना होगा, तो सर क्या वो मतलब डिफरेंट पेंसिल को यूज करके करेंगे या फिर सेम पेंसिल? जो आपको बॉर्डर देना है दैट विल बी डार्क, ठीक है, तो आप डार्क पेंसिल्स का यूज करेंगे उसमें। ओके सर। मैंने पेंसिल्स का जो दे देते हैं, दिखाया अच्छा था आपको। डिस्क्रिप्शन दे देते जब वो आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप में, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ पेंसिल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको आप एक HB से ड्रॉ कर लीजिए, आप उसका जो बॉर्डर है वो आप HB से ड्रॉ कर लीजिए, और जो आप लाइंस अंदर बनाएंगे, गाइडलाइंस जो बनाएंगे आप, वो आप H से 2H से ड्रॉ करिएगा, ठीक है। किसी के पास 2H नहीं है तो कम से कम H से ड्रॉ कर ले। और सर वो ठीक जो है? लेटर लिखने होंगे सर? लेटर जो आपको लिखने हैं वो HB से लिखने हैं। ओके सर। ओके सर। ओके, तो ठीक है, ये बात क्लियर है। Shall we leave? I will upload everything on the drive. ओके सर। And आपको जो असाइनमेंट भी सबमिट करना है वो असाइनमेंट क्रिएट में कर दूंगा, then you will have to upload everything on the drive. Okay, Krishna Gopal, please send me your phone number so that I can add you. Sir, Sir, what your we have class shall is we only give one mobile day in a number? week. Hmm? Your class is only one day in a week. My class will be only on Wednesday, and on Thursday Shahid sir will take class for unit 2. Okay. Okay, sir. Okay, then you might leave. You can leave the class. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. Waalaikum salam. थैंक यू सर। Assalamualaikum, sir. अल्लाह हाफिज सर। लो भाई मेरे को ग्रुप में ज्वाइन कर लो। कृष्ण गोपाल, अभी आप हैं ग्रुप में? सर मुझे मोबाइल नंबर तब्दील करनी है। यस सर। हाँ कृष्ण गोपाल, आपका नंबर तो ये ऑलरेडी एडेड है इसमें। सर लिंक नहीं आ पाता सर इस पर। नहीं, जब आप ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हैं तो लिंक क्यों नहीं आता? सर लिंक आया था तो फिर लिंक खुलता नहीं है सर, किसी से और से मांगा था मैंने। लिंक खुलता नहीं है? यस सर। लिंक आता नहीं है? आप ग्रुप में हैं कि नहीं है? सर हूँ, ग्रुप में तो हूँ सर। ग्रुप तो आप ये बताइए कि आप ग्रुप में जब हैं तो अब ये लिंक तो खुल जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने पास से भी खोल रहे हैं, बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं इसी नहीं लिंक सर, से। किसी और ने भेजा था जब खुला था सर। नहीं तो आप उसको कॉपी करके
आप उसको कॉपी करके जो है उसको पेस्ट करके देखिए, आप उसमें क्रोम में पेस्ट ठीक है। करके देखिए कहीं पे। नहीं तो जो लास्ट में लिख के आ रहा होता है ना, जब आप गूगल मीट खोलेंगे तो लास्ट में लिख के आएगा ज्वाइन विद अ कोड, ठीक है। अच्छा सर। जैसे आज का अगर आप अपना व्हाट्सएप खोल के देखिए तो लास्ट में आज लिख के आ रहा है TVG WPNG UFD, ये जो है मीटिंग कोड है आज का। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, ओके सर। जब आप, बल्कि आप इसमें नीचे भी देख रहे होंगे जो आप मीटिंग खुली हुई है उसमें ये लिख के आ रहा होगा TVG WPNG UFD। तो आप ये ठीक है मीटिंग सर। कोड डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपकी मीटिंग उसमें ज्वाइन हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। ठीक। तौसीफ आप ग्रुप में नहीं है? तौसीफ आप सर मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है। आप ग्रुप में हैं आप? मैं? जी आप ग्रुप में हैं? हाँ मैं तो हूँ अभी ग्रुप में। ठीक है, तो आप जो है मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो आप उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दूसरे नंबर से लीव कर दीजिएगा। जी शुक्रिया। ठीक है, जी शुक्रिया। ठीक, ओके, लीव कर दीजिए फिर आप लोग। किसी को कुछ पूछना है तो वो रहे। सर एक बात और पूछनी है सर। जी बताइए। सर और ग्रुप में भी ऐड करवा देना मेरे को सर। देखिए और ग्रुप का मैंने ऊपर लिंक डाल रखा है, उसको जो है आप अपने साथ के बच्चों से मालूम कीजिए कि उसका वो क्या है। ठीक है सर। ठीक है, उसका लिंक मालूम कीजिए, वो टीचर से डायरेक्ट बात करके आपको कर देंगे। तौसीफ कमर आप भी ग्रुप में ऐड कीजिए। और सर अगली दूसरे क्लास थर्सडे को होगी, वेडनेसडे को? कल आपकी क्लास शहीर सर लेंगे। अच्छा सर। ठीक है, कल आपकी क्लास शहीर सर लेंगे और नेक्स्ट वेडनेसडे में क्लास मैं लूंगा आपकी। और सर ये A4 साइज पे बनाने हैं। आपके पास ड्राइंग शीट आपने ले ली है तो ड्राइंग शीट पे बनाइए, ड्राइंग शीट नहीं मिल रही है तब आप A4 साइज पे बनाइए। ठीक है सर, ओके। ओके।